ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮਾਈਂਡ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਸੈਕੰਡ ਦੀ। ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਰਟ 1 ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੈਕੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਧਰਮ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ। ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜੋ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਪਲ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਜੋ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੋ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਟੈਕਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ? ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ। ਜੋ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਇਹ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੋਧੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਬੋਧੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ? ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੋਧੀ ਸਾਹਿਤ, ਬੋਧੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਸਥਾਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਟੈਕਸਟ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਪੱਤਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਟੈਕਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ, ਔਰ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਵਿਨੇ ਪਿਟਕ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਅਭਿਧਮਾ ਪਿਟਕ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਨੇ ਪਿਟਕ ਆਇਆ, ਔਰ ਵਿਨੇ ਪਿਟਕ ਜੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਉਪਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। तो इसमें याद रखना सौखा है, अल्फाबेटिकली विनय और उपाली इकट्ठे ही ने, मतलब वी ਅਤੇ यू इकट्ठे ही ने। तो विनय पिटका किताब किसने लिखी? उपाली ने लिखी। और इस किताब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇ ਪਿਟਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਧੀ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਿਨੇ ਪਿਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਅਪਣਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੌਨਿਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਭਿਕਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਨਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਨ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਫਸਟ ਨਨ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਬਣੀ ਸੀ? तो जो इसकी फस्ट नन बनी सी वो इसकी गौतमी माँ ही बनी सी, जो इसकी मतरेई माँ सी। आई थिंक इतों तक तुहानू ये समझ आ गया होएगा। उस तो बाद आप गल करिए सुत्ता पिटका की, और ये जो सुत्त पिटका किताब है ये आनंद ने लिखी है। ये लॉन्गेस्ट बुक है, और ये आनंद है जो ये बुद्ध का गौतम बुद्ध का भांजा या भतीजा भी
ਸੀਗਾ। और ये जो सुत्ता पिटका किताब है इस दे विच महात्मा बुद्ध के जो धार्मिक प्रवचन दिया करते सन उन्होंने इनकलूड किया गया। तो इस करके सुत्ता पिटका दे विच तुसीं कह सकते हो कि गौतम बुद्ध के प्रवचन नूं ऐड किया गया। विनय पिटका दे विच आपां ओ भिक्षु या भिक्षुणियां जो नन्स जो बुद्धिज्म नूं ज्वाइन करना चाहुंदे ने उन्हां दे लई जो रूल एंड रेगूलेशन है उन्हां बारे डिटेल लिखी गई है। तो आई थिंक ये स्लाइड तुहानूं समझ आ गई होएगी। आगे चलते हैं। उस तो बाद अगर अभिधमा पिटका की गल करिए तो ये जो अभिधमा पिटका है ठीक है ये एक्चुअल दे विच विनय पिटका ते सुत्ता पिटका तो ही लिता गया है। एक्चुअल दे विच विनय पिटका ते सुत्ता पिटका का ही कुछ डाटा ठीक है कुछ मटीरियल चक के अभिधमा पिटका दे विच इनकलूड किया। इस करके एक अभिधमा पिटका नाम की किताब जिहड़ी है वो लिखी गई। लेकिन ये किताब का कोई प्रॉपर राइटर नहीं है। क्यों? क्योंकि विनय पिटका ते सुत्ता पिटका का ही डाटा इस कंबाइन किया गया है। ठीक है। तो ये तुसी याद रखना है कि जो अभिधमा पिटका है वो विनय पिटका सुत्ता पिटका तो ही लिता गया एक ग्रंथ है। बुद्ध धर्म के दर्शन नाल संबंधित है और अभिधमा पिटका दे विच एक्चुअल दे विच बुद्ध धर्म की फिलोसफी नूं जिहड़ा है वो डिस्कस किया गया है। अभिधमा पिटक अगे 7 भागों के विच वंडिया गया। ये भी तुसी याद रखना है। और मैं तुहानूं ये कहा कि इंडिया दे विच जिन्ने भी ग्रंथ लिखे गए वो सारे के सारे पाली भाषा दे विच लिखे गए हैं। लेकिन अगर तुहानूं पुछ लैन कि इन्हां तिन्नां ग्रंथां दे विचों विनय पिटका सुत्ता पिटका और अभिधमा पिटका इन्हां तिन्नां ग्रंथां दे विचों कोई ऐसा ग्रंथ जो कुछ संस्कृत दे विच लिखिया गया तो बिल्कुल उसका नाम है अपने कोले अभिधमा पिटका। ऐसा क्यों? मे भी ऐसा इस करके होया होएगा क्योंकि जो अभिधमा पिटका है ये अभिधमा पिटका कदों लिखा गया सीगा तो ये 250 BC के आस-पास से लिखा गया जिस समय इंडिया दे विच मौर्य साम्राज्य का उदान सी। मौर्य साम्राज्य दी डेवलपमेंट जो हो रही सी और अशोका के रूप में ये डेवलपमेंट इसकी हो रही है। और इत्थे ही अशोका ने अपने लड़के महिंद्रा और अपनी डॉटर संघामित्रा नूं जिहड़ा सी वो श्रीलंका भेजा सी बुद्ध का प्रचार करने वास्ते। और मैं तुहानूं कहा कि श्रीलंका विच कोई भी साहित्य लिखा गया तो वो संस्कृत भाषा विच लिखा गया। तो हो सकता है कि एक कुछ डाटा कुछ साहित्य का कुछ पार्ट लैके आए होण और जिस समय एक किताब लिखी जा रही सी उस समय ही इस दे विच इनकलूड सेम उस तरह ही कर दिता गया होवे। तुसीं सिर्फ इन्ना याद रखना है कि पहला था कि इन्हां तिन्नां दे विचों किहड़ा ग्रंथ है जो संस्कृत विच लिखा गया वो अभिधमा पिटका है। और जदों आपां मौर्य साम्राज्य पढ़ांगे उहदे विच मैं इसनूं रिपीट कर दांगा कि मौर्य साम्राज्य के राजा अशोका ने अपने लड़का ते लड़की नूं श्रीलंका दे विच भेजिया सी बुद्ध दा प्रचार करन दे लई। आई थिंक ये चीज़ तुहानूं समझ आ गई होएगी। उस तो बाद कुछ होर भी किताबां ने क्योंकि आपां बुद्ध का लिटरेचर पढ़ते पे हैं जिस तो सानू बुद्ध धर्म की काफ़ी जानकारी मिली है। तो ये पूरियां किताबां पढ़नियां बहुत जरूरी ने। तो इस दे विच जो अगलियां किताबां ने वो है अपने कोले दीपवंश अते महावंश। दीपवंश अते महावंश एक्चुअल दे विच श्रीलंका के इतिहास की जानकारी दिंदियां ने। लेकिन ये नहीं समझना कि ये श्रीलंका च लिखियां गईयां बल्कि ये इंडिया दे विच ही लिखियां गईयां और श्रीलंका के वख-वख शासकों ते उन्हां दे प्रशासन नाल संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी ये प्रोवाइड करदियां ने पर ये पाली भाषा दे विच लिखियां गईयां ने। तो दीपवंश अते महावंश ये दो किताबां भी पाली भाषा दे विच ही लिखियां गईयां सीगियां। उस तो बाद है अपने कोले मनिंद पन्ना। ये जो किताब है काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है। एक्चुअल दे विच ये एक तरह की डिस्कशन है जो कि नागासैन अते उस समय दे एक राजे मनिंदा जो कि इंडो ग्रीक शासक सीगा इंडो ग्रीक का राजा से जिसनों कई थावां ते मनिंदर भी लिखिया हुंदा है। उन्हां दे विच आपसी एक डिस्कशन चलती है। जिस समय इंडो ग्रीक का राजा मनिंदा सीगा उस समय ही इस दे दरबार विच एक भिक्षु नागासैना आंदे ने और जो कि बुद्ध धर्म बारे जानकारी दिंदे ने और इत्थे ही इंडो ग्रीक का शासक मनिंदा अते नागासैना दे विच एक डिस्कशन हुंदी है एक संवाद हुंदा है। इसे संवाद नूं बाद विच नागासैना ने किताब दे विच इनकलूड करता और उस किताब का नाम पै गया मनिंद पन्ना। हालांकि एक किताब भी इंडिया की किताब है और पाली भाषा दे विच किताब लिखी गई। उस तो बाद कुछ ऐसियां किताबां ने जो संस्कृत भाषा विच लिखियां गईयां जिवें कि बुद्ध चरित्र सौंदर्यनंदा सूत्रालंकार सरीपुत्र परिकरण अते वज्र सूची। ये कुछ ऐसियां किताबां ने जो संस्कृत दे विच लिखियां गईयां लेकिन इन्हां किताबां नूं किहने लिखिया अश्वघोषा द्वारा इन्हां किताबां नूं लिखिया गया। ये अश्वघोषा कौन है? एक्चुअल दे विच एक राजा आएगा अपने कोले कनिष्क ठीक है कुशाना दा ये राजा है कनिष्क और इसके दरबार दे विच ही
इस दे दरबार दे विच एक राइटर होया करदा सी जिसनूं बोलदे ने अश्वघोषा। तो इस अश्वघोषा द्वारा ये किताबां जिहड़ियां हैगियां वो लिखियां गईयां। हालांकि कनिष्क दे दरबार दे विच एक वासुमित्रा भी जिहड़ा हैगा ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਹੀ ਹੈ, तो ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸੁਦਾ ਮੰਗਾ ਅਤੇ ਕੁਰੀਆ ਸਮੰਗਲ ਵਾਸਨੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਬੋਧਾ ਘੋषा द्वारा लिखियां गईयां। और एक किताब है मध्यमिका, और ये जो किताब है मध्यमिका ये नागा अर्जुन द्वारा लिखी गई है। देखो ऊपर जो किताब आप पढ़ के आए हैं मनिंद पाना ये नागा सैन द्वारा लिखी गई है, लेकिन नीचे अगर आप देखिए मध्यमिका तो एक किताब नागा अर्जुन द्वारा जी है वो लिखी गई है। आई थिंक ये स्लाइड तो समझ आ गई होगी, तो आप आगे चलते हैं। उस तो बाद बुद्ध धर्म ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। और बुद्ध धर्म ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿਲਰਸ, ਤਿੰਨ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ बुद्ध धर्म ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਥੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਤਿੰਨ ਪਿਲਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ बुद्ध धर्म ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਟੈਟ ਦਾ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਥੰਮ बुद्ध धर्म ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਥੰਮ याद रखने ਪੈਣਗੇ, और ਉਹ ਤਿੰਨ ਥੰਮ ਕਿਹੜੇ ਆ बुद्ध, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ गौतम बुद्ध ਦੀ ही डिस्कशन करांगे। खुद गौतम बुद्ध ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। और दूसरा जो पिलर है वो है थंब, जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ बुद्ध ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। और तीसरा पिलर है ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੰਘਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ, ਨਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो बुद्ध धर्म ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿਲਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, बुद्ध, धम्म ਅਤੇ संघ, ठीक है। बुद्ध धर्म इस दे संस्थापक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਜੀਵਨ, ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ बुद्ध धर्म ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ गौतम बुद्ध, मतलब जिस ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿद्धार्थ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਜੀਵਨ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। तो सब तो पहला अज आप अपनी अज की क्लास के विच पढ़ते हैं फर्स्ट पिलर। और इस फर्स्ट पिलर के विच आप बुद्ध नूं डिस्कस करना है, गौतम बुद्ध नूं डिस्कस करना है, मतलब इन्हां दी लाइफ नूं आप डिस्कस करना है। तो फर्स्ट पिलर के विच आप बुद्धा बारे डिस्कस करांगे, जो कि बुद्धिज़म के फाउंडर ही कहलाउंदे ने। तो तुहानूं ये चीज़ भी पता होनी चाहिए है कि बुद्धिज़म के फाउंडर कौन ने। बुद्धिज़म के फाउंडर ने गौतम बुद्ध, हालांकि सबनूं पता ही हुंदा है। देखो बुद्ध का जो जन्म होया, जो गौतम बुद्ध का जन्म होया, ये जो जन्म होया ये 567 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ जन्म होया सी। लेकिन कई ਥਾਵਾਂ ਤੇ 563 BC भी लिखिਆ, तो तुसी दोनों डेटा ही याद रखनियां ने। तो गौतम बुद्ध ਦਾ ਜਾਂ सिद्धार्थ ਦਾ, क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਦੇ बचपन ਦਾ नाम सिद्धार्थ ਸੀ, इस करके कई बारी ਆਪਾਂ सिद्धार्थ बोलदिया करांगे और कई बारी गौतम बुद्ध बोलदिया करांगे। तो गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का जो जन्म होया वो 563 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 567 BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। और इस ਦਾ ਬਰਥ ਦਾ ਜੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, जो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਮਲ ਅਤੇ ਬਲਦ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼ਾਕਿਆ ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਛਤਰੀਆ ਸੀਗੇ, और ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, तो ਲੂੰਬਨੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਗ ਹੈ ਕਪਲਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। और ਇਹ ਜੋ ਕਪਲਵਸਤੂ ਹੈ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ, और ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿद्धार्थ ਸੀ, और ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਰ ਨੇਮ ਸ਼ਾਕਿਆ ਮੁਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, और ਤਥਾਗਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो देखो गौतम बुद्ध ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਹਾਮਾਇਆ, जो कि ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਮਦਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਰੀਅਲ ਮਦਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਕੌਣ ਹੈ, तो ਰੀਅਲ ਮਦਰ ਹੈ ਮਹਾਮਾਇਆ, जो कि कौलिया कबीले ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। और ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਸ਼ੋਧਨ। ਸੁਸ਼ੋਧਨ ਕਪਲਵਸਤੂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸ਼ਾਕਿਆ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਸ਼ਾਕਿਆ ਕਬੀਲਾ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕਬੀਲਾ ਹੈਗਾ, और ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਸ਼ੋਧਨ, ठीक है। काफ़ी ਵੱਡਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। और ਇਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो ਉਹ ਹੈ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਗੌਤਮੀ। और ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੌਤਮੀ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ सिद्धार्थ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ तो ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ गौतम बुद्ध भी ਪਿਆ, ठीक है। और ये जो गौतमी है इसका टाइटल तुसी याद रखना है महाप्रजापति, ठीक है। महाप्रजापति गौतमी के नाम नाल इसनूं जाणिया जांदा सी। बहुत सारिया थावां ते लिखिया हुंदा है कि महामाया अते गौतमी ये दोनों सखियां सिस्टर सन, और जिन्हां दी मैरिज सुशोधन नाल इकट्ठियां ही हुई सी। लेकिन हुण कहानी की है, कहानी है कि इन्हां दे कोई औलाद नहीं सीगी, इन्हां दे कोई औलाद
नहीं सी और औलाद ना होने करके काफ़ी यज्ञ वगैरह करवाया करते सन, काफ़ी पूजा पाठ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਮਾਇਆ ਜੋ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਐਲੀਫੈਂਟ, ਮਹਾਮਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਲੋਟਸ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ठीक है, वाइट लोटस पकड़िया होया और ये महामाया के गर्भ के अंदर चला जाता है। हुण जदों ये सुपना वो अपने हसबैंड सुशोधन नूं दसदी है तो सुशोधन पंडितां नूं बुलांदा है कि भी इस सुपने का एक्चुअल दे विच मतलब की है। तो पंडित कहते हैं कि कोई बेबी होएगा, मतलब कोई संतान होएगी, लेकिन वो संतान जिहड़ी है वो या तो पूरी तरह सन्यासी होएगी, मतलब पूरी तरह सन्यास धारण कर लेगी, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा वड्डा रूलर या राजा बनेगा। दोनों कंडीशन ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮਹਾਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਲੂੰਬਣੀ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਪਲਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੂੰਬਣੀ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਪਲਵਸਤੂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਮਹਾਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਧਾਰਥ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਪਾਲਿਆ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਿਸਟਰ ਗੌਤਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੌਤਮੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਰਥ, ठीक है। और सिद्धार्थ गौतमी का सियाणा पुत ही रूप दे विच, क्योंकि बुद्धा का मतलब ही होंदा सियाणा, तो गौतम बुद्ध मतलब गौतमी का सियाणा पुत्र बन जाता है। आई थिंक इत्थों तक तुहानूं ये चीज़ समझ आ गई होएगी। हुण देखो एक भविष्यवाणी हुई है कि बई ये जां तां सन्यासी बनेगा, तो इस करके इसके जो फादर ने वो इसनूं एक ऐसे अलग महल दे विच रखदे ने जिथे ये दुनियादारी तो थोड़ा दूर रहे, मतलब ऐसा मतलब महल जिथे कोई दुखी ना होवे, जिथे कोई रो ना रहा होवे, तो इस तरह के महल दे विच इसनूं जिहड़ा हैगा गौतम बुद्ध नूं रखिया जांदा, जिस दे आस पास काफ़ी अच्छा माहौल जिहड़ा वो क्रिएट किया जाता। लेकिन होनी तो होनी सीगी। एक दिन ये सैर करन चले जाते हैं अपने एक सारथी के नाल। सारथी बार बार जिक्र आएगा, सारथी का मतलब होंदा जो रथ नूं चलाने वाला, क्योंकि ये राजे के बेटे ने तो तुर के तो जाणगे नहीं या खुद नहीं जाणगे, तो रथ के उत्ते सवार होके ये जस्ट सैर करन चले जाते हैं। और जदों ये सैर करन जाते हैं तो रस्ते दे विच 4 दृश्य देखते हैं, और यही 4 वो दृश्य ने जिन्हां ने इन्हां दी जिंदगी दे विच एक बहुत वड्डा बदलाव लैके आंदा। ये 4 दृश्य किहड़े-किहड़े ने? देखो, सब तो पहला गौतम बुद्ध ने एक बुढ़ा आदमी देखा, काफ़ी बजुर्ग व्यक्ति सीगे ये, और गौतम बुद्ध अपने सारथी नूं इस बारे पुछदे ने कि ये जो बजुर्ग व्यक्ति ने ये क्यों इन्ने बजुर्ग ने, या मतलब इन्हां नूं की होया। तो गौतम बुद्ध दा जो सारथी है वो दसदा है कि ये काफ़ी बजुर्ग हो चुके ने, इन्हां दी काफ़ी उम्र हो चुकी है। गौतम बुद्ध अपने सारथी नूं पुछदा है कि बई कि मैनूं भी, बई मैं भी इन्ना बजुर्ग हो जाऊंगा कि मैनू भी इस उम्र दे विच जाना पएगा। तो गौतम बुद्ध दा सारथी बोलदा है कि हाँ जी, तुहानू भी इस उम्र का सामना करना पएगा, मतलब तुसी भी बजुर्ग हो सकते हो। थोड़े व्याकुल हो जाता है क्योंकि यंग है, यंग एज है, तो इसने कोई ऐसा बजुर्ग आदमी देखा नहीं जो इन्ना ज़्यादा वीक होवे और कमज़ोर हो अवस्था दे विच होवे, तो थोड़ा व्याकुल हो जाते हैं कि अगर मैं इस तरह की कंडीशन च आया तो मेरा की बनेगा। अगे जाते हैं तो एक बीमार आदमी देख लेंदे, कोढ़ी आदमी देखते हैं, तो फिर अपना सारथी नूं पुछदे ने कि इसनूं की होया। तो गौतम बुद्ध नूं दस्सिया जांदा सारथी वल्लों कि इन्हां नूं कोई ना कोई बीमारी लगी है, मतलब इन्हां नूं कोई कोढ़ होया, इस करके इन्हां दी स्थिति इस तरह दी है। गौतम बुद्ध फिर अपने सारथी नूं पुछदा है कि मैनूं भी कोई ना कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो सारथी कहंदा हाँ जी, तुहानूं भी आ सकती है, क्योंकि कोई भी दुनिया ते आया वो कदे बीमार हो सकता है, कोई ना कोई उसनूं बीमारी भी हो सकती है। थोड़ा होर व्याकुल हो जाते हैं कि अगर मैनूं इस तरह की कोई बीमारी होगी तो फिर मैं की करांगा। अगे जाते हैं तो एक लाश देखते हैं, अर्थी देखते हैं, तो अर्थी देखते हैं पिछे उहदे सके संबंधी रोंदे जाते हैं। तो फिर गौतम बुद्ध देख के काफ़ी व्याकुल हो जाता है सारिया चीज़ां, और अपने सारथी नूं पुछदा है कि बई ये की हो रहा है। तो इहदा सारथी दसदा इन्हां दा कि भी कोई इन्हां दा सका संबंधी मर गया और इसनूं जिहड़ा हैगा वो संस्कार करन चले ने, इस करके वो पिछे रोंदे जाते हैं। तो गौतम बुद्ध फिर अपने सारथी नूं पुछदा कि बई कि मैं भी मर जूंगा? कहंदे हाँ जी, तुसीं भी मरोगे, जो दुनिया ते आया है वो एक ना एक दिन दुनिया तो जाएगा। तो ये काफ़ी व्याकुल हो जाते हैं क्योंकि ऐसिया चीज़ां इन्होंने कदे नहीं देखिया होंदियां, जिस करके बहुत ज़्यादा व्याकुल ने, बहुत ज़्यादा टेंशन लै जाते हैं। अगे जाते हैं तो एक साधु सन्यासी मिलता है जो कि काफ़ी खुश होंदा है और अपना एक सलोक जिहड़ा हैगा वो गाउंदा जाता है।
ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕਲ ਸੰਬੰਧੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਸਤਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਘਰੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅਸੈਟਿਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੈਟਿਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਣਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣੇਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। जस्ट एक कहानी है, ठीक है, कोई ये नहीं हैगा कि सच है झूठ है, जस्ट एक मिथ्यास है, बट एक कहानी है कि उन्होंने मनाया गया मैरिज वास्ते। किस तरह मैरिज वास्ते मनाया गया, उहदियां अलग अलग कहानियां हो सकदियां ने। तो उन्होंने मैरिज वास्ते मनाया गया और उन्हों का विआह मतलब गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का विआह किया गया। 16 साल की उम्र में इन्हों का विआह यशोधरा के नाल किया गया और लड़का पैदा होया जिसनों राहुल बोलते हैं। राहुल नाम का एक लड़का पैदा होता है। मन के अंदर है कि मैं सन्यासी बनना है, लेकिन गृहस्थी जीवन भी इन्होंने बतीत किया। कहते हैं कि 16 साल के विच इन्हां दी मैरिज हुई और 29 साल के विच इन्होंने घर छड्डिया सी, इस करके 29 साल तक इन्होंने अपना जिहड़ा सीगा वो गृहस्थी जीवन बतीत किया। लेकिन मन के अंदर यही व्याकुलता है कि मैं कदों घर छड्ड के जावां। लेकिन एक दिन यशोधरा नूं अते राहुल नूं सुत्ते पए नूं ही छड्ड के ये घर नूं त्याग दिंदे ने और इसे नूं ही बोलते हैं महान त्याग। और महान त्याग नूं ही इन्हां दी भाषा विच बोलिया जाता है महाबृषकर्मन। ये तुसीं याद रखना है कि गौतम बुद्ध के घर छड्डण नूं की किया जाता है महाबृषकर्मन। और महाबृषकर्मन का चिन्ह की सी, सिंबल की सी, वो सी घोड़ा। और 29 साल की उम्र विच इसने इन्होंने अपने सारथी दे नाल मतलब क्योंकि ये पैदल नहीं गए स्टार्टिंग दे विच, तो इन्हां दा एक सारथी सी जिसका नाम सी चन्ना और इन्हां दा एक घोड़ा सी, काफ़ी मनपसंद घोड़ा सी जिसका नाम सी कंठक या कंटक। उसनूं नाल लैके ये घर छड्ड दिंदे ने। हालांकि ये नहीं हैगा कि ये उन्हां दे नाल ही रहे। चन्ना ते कंठक इन्हां नूं वापस भेज दिता गया सीगा एक नदी तो। ये नदी तुसीं मैनूं कमेंट करके दसनी है कि किस नदी तो इन्हां नूं वापस जिहड़ा सीगा वो भेज दिता सीगा। तो इन्हां नूं वापस भेजता सी क्योंकि इन्हां ने मुंडन कर लिया सीगा। तुसीं देखदे हो कि विजडम सिंह है ना जो इन्हां दे जूड़ा कीता हुंदा, इन्हां दे कोई जूड़ा नहीं हैगा, जस्ट वो विजडम सिंह दे रूप दे विच आपां नूं पिक्चर्स दे विच रिप्रजेंट करदे ने। अदरवाइज इन्हां दे वाल नहीं सन सिर दे, इन्हां ने अपने वाल जिहड़े सीगे वो कटाते सीगे। तो सच की भाल दे लई ये रवाना हो जाते हैं और लगभग 6 साल ये भटकते हैं। जदों ये घर छड्ड के आउंदे ने तो इन्हां दे नाल इन्हां दे 5 साथी भी मिलते हैं और ये सारे ही जिहड़ा हैगा ओह तपस्या करते हैं, यानी कि भगती करते हैं और ये अपना मैडिटेशन भी सीखते हैं। किन्हां तो इन्हां ने अपना मैडिटेशन सीखिया, ध्यान लगाउणा इन्हां ने अलार कलामा तो सीखिया सी। अलार कामा इन्हां ने ही इन्हां नूं ध्यान लाना सिखाया सी। मे बी ये उही व्यक्ति ने जो 2014 की भविष्यवाणी इन्हां ने कीती सीगी। तो इस तरह ये ध्यान लाना तो सीख लैंदे ने, मैडिटेशन करना तो सीख लैंदे ने, बट इन्हां नूं ज्ञान हजे नहीं मिलता। हुण जदों इन्हां नूं काफ़ी लंबे समय तक ज्ञान नहीं मिलता, ठीक है, तो इन्हां दे जिहड़े 5 साथी है इन्हां नूं छड्ड दिंदे ने कि बई आपां नूं शायद ज्ञान नहीं मिलता तो आपां नूं वापस जाना चाहिए घरां दे विच। तो ये 5 साथी इन्हां नूं छड्ड के चले जाते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध यही कहते हैं कि मैं तो हजे ज्ञान प्राप्त करना ही करना है। इस तरह गौतम बुद्ध की ये सोच सीगी कि मैनू ज्ञान मिलेगा और मैं ज्ञान प्राप्त करना ही करना है, जिस करके ये मैडिटेशन करते रहते हैं थां बथां। और ये एक दिन की करते हैं कि पिपल का पेड़ है और बोध गया नाम का एक एरिया है, गया नाम का एरिया, क्योंकि गया नाम नूं ही बाद विच बोध गया कहन लग गए। तो गया नाम का एक एरिया बिहार वाला, मगध वाला एरिया, बिहार वाला एरिया, जिथे एक पिपल का पेड़ सी और इत्थे एक नदी सी निरंजना नदी। निरंजना नदी के किनारे ते बैठ के तपस्या करते हैं, ठीक है। और तपस्या करते हुए 35 साल की उम्र में इन्हां नूं जिहड़ा हैगा वो ज्ञान मिलता हैगा और इस ज्ञान नूं बोलते हैं निर्वाण। मतलब ज्ञान की प्राप्ति नूं की बोलिया जाता है, निर्वाण बोलिया जाता है। चिन्ह की है इहदा, तो याद रखना तुसीं कि जो इन्हां नूं ज्ञान की प्राप्ति हुई उसका चिन्ह की है, पिपल का पेड़, जिसनूं बोधि रुख भी अजकल बोलते हैं,
ठीक है जी, इन्नी गल क्लीयर हुई। उस तो बाद हुण इन्हां ने जो आपां जदों इन्हां नूं ज्ञान मिलिया, ठीक है, जदों इन्हां नूं ज्ञान मिलिया तो इन्हां ने अपना जिहड़ा उपदेश दिता सी, जो इन्हां ने अपना सरमन दिता सीगा, उस सरमन नूं बोलदे ने धर्म चक्कर परिवर्तन। लेकिन ये जो धर्म चक्कर परिवर्तन दिता, सरमन दिता, वो किन्हां नूं दिता? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ 5 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਭਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋ। ਔਰ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀਗਾ ਚੱਕਰ, ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਧਰਮ ਚੱਕਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਚੱਕਰ। ठीक है, तो इत्थों तक की कहानी तुहानू समझ आ गई होगी। और उस तो बाद इन्हां दी डेथ हो जाती है। महापरिनिर्वाण इस डेथ नूं बोलदे ने। घर छड्डण नूं महाबृषकर्मन बोलदे ने, लेकिन डेथ नूं की बोलदे ने? डेथ नूं बोलदे ने महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण 80 साल की उम्र विच गौतम बुद्ध की डेथ हो जाती है। चिन्ह सतूपा और इन्हां दी जो डेथ हुई सी कुशीनगर दे विखे इन्हां दी डेथ हो गई सीगी। और ये मल्ल गणराज दे विच उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पिंड कासिया के कोल ये एरिया जिथे इन्हां दी जिहड़ी हैगी आ वो डेथ हो जाती है। तो इस तरह गौतम बुद्ध की जिहड़ी है वो डेथ हो जाती है। ये सी तुहाडा फर्स्ट पिलर जिन्हों मैं तुहानू कंप्लीट जिहड़ा सीगा वो करवाता सी। पहले इस सैशन दे विच अज आपां इन्ना ही गल करनी है, क्योंकि आपां फर्स्ट पार्ट पढ़ना सीगा। तो फर्स्ट पार्ट दे विच आपां देखिया गौतम बुद्ध की लाइफ नूं आपां डिस्कस कीता। आ जो चीज़ तुहानू मैं एक इंडैक्स बना के दिता है, ये तुसीं रीड कर लेना खुद ब खुद, क्योंकि इस दे विच आपां उन्हां दे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंसीडेंट होए, ठीक है, जो घटनावां वापरियां इन्हां दे नाल, ओ मैं एक चार्ट दे विच तुहानू बना के देतियां और ये तुसीं याद रखना है। अगर तुहानू पिलर आ जाण, चाहे तुहानू 3 रतन आ जाण, इक्को ही गल है, ठीक है, मतलब बुद्ध, ज्ञान, ज्ञानवान, धम्म, सिद्धांत, संघ अते हुकम, ये 3 पिलर के रूप में ही तुसीं पढ़ने ने। हाँ, अगर पिलर ना लिखिया होवे, गहने लिखिया होण, तां भी वो बुद्ध, धम्म अते संघ के रूप में ही तुसीं याद करने ने। मैं हल्का जिहा तुहानू रीड कर दिना, क्योंकि इस इंडैक्स दे विच आपां गल कीती है कि गौतम बुद्ध का जन्म कदों होया, तो 563 या 567 BC दे विच होया, लुंबिनी कपिलवस्तु नेपाल दे विच इन्हां दा जिहड़ा सी वो जन्म होया सी। चिन्ह सीगा कमल अते बल्द और इन्हां दे बचपन का नाम सीगा सिद्धार्थ और इन्हां नूं अदर नेम शाक्या मुनि और तथागत के रूप में भी जानिया जाता है। घर छड्डण की गल करिए तो 29 साल की उम्र में इन्हां ने घर छड्डिया अपने सारथी चन्ना अते घोड़ा कंठक दे नाल, और चिन्ह है घोड़ा। और इन्हां दा जो उस समय घर छड्डण का जो नाम है वह है महाबृषकर्मन। ज्ञान प्राप्ति की गल करिए तो 35 साल की उम्र में इन्हां नूं ज्ञान प्राप्ति हुंदी है। निरंजना नदी के किनारे ते गया नाम के स्थान ते, जिन्हों अज आपां बोध गया भी बोलते हैं। और इन्हां दा चिन्ह है बोधि पेड़, जिन्हों अजकल बोधि रुख के नाम नाल भी जानते हैं। और ज्ञान प्राप्ति नूं बोलते हैं निर्वाण। फिर आ गया उपदेश। उपदेश जो इन्हां ने दिता सी अपने सारनाथ विच अपने 5 साथियों नूं इन्हां ने उपदेश दिता सी। और इस उपदेश का चिन्ह है चक्कर और उपदेश नूं बोलते हैं धर्म चक्कर परिवर्तन। मौत की गल करिए, डेथ की गल करिए तो 80 साल की उम्र में इन्हां दी डेथ हुंदी है मल गणराज कुशीनगर दे विच। और चिन्ह स्तूपा। और इस मौत नूं या डेथ नूं की बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। स्तूपा का मतलब वैसे तो संदूक ही हुंदा है। संदूक जदों इन्हां दे संदूक दे विच जदों इन्हां दी बोन्स या अवशेष पा के रखे गए सी और बाद विच उन्हां अवशेषां ते ही मंदिरां दी उसारी की गई, तो उन्हां नूं ही स्तूपा जिहड़ा सीगा ओह बोलिया गया सीगा। तो अज के सैशन च आपां इन्ना ही काम करना सी। अज के सैशन दे विच बने रहण दी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। प्लीज़ तुसीं मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लो, तां जो आउण वालियां वीडियोज़ दी नोटिफिकेशन तुहानूं तुरंत मिल सके। तो थैंक यू।